First of all, thank you very much for coming over here. On behalf of PSA Private Schools Association Jammu and Kashmir, we would like to condemn the Delhi and Naugam blasts, which had a lot more toll on their lives. Where from actually it is the education which is supposed to be imbibing tolerance, but unfortunately we are coming up with those modules, those issues in our system where we have to rely on the teachings of Sheikhul Alam Rahmatullahi Alayh. We have to go to our roots, to our culture. Firstly, I will like to emphasize on one fact that the bureaucracy which is in place for education sector, they are efficient. This is our official statement. They are efficient to deal with the education scenario of Jammu and Kashmir. May it be our secretaries, principal secretaries, may it be the directors, may it be the additional secretaries, may it be the board chairman and the secretaries. We have all faith in the system which is in place. Let us today debate about the private sector. Private sector क्यों ज़रूरी है? ये हम सबको पता है, मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है. But one very important fact I will tell you. Government as well as the community, they have to understand one very important fact, that we are the important players in this sector. We are the knowledge partners of the government, we are the knowledge partners of the community. So, if at all we see the matrix of this education sector, imagine why we don't have medical colleges in Kashmir. What's the reason? Why we are relying on the engineering colleges of Karnataka, Bangalore and rest of the MP, and this is the fact, and why our students are in thousands and thousands in Punjab. As a society, as the government, we have to look into these things. As a community, we have to look into these things. Why our money is being sniffed to other places? So this is one more important factor, that we may be treated as the knowledge partners. We have been the pillars of peace for last 7 decades, and especially school education. There are India has the highest number of budget schools all over the globe, and Kashmir has approximately 96% of budget schools. These budget schools are having a fee ranging of hardly 500, 400 to 1500. This is the range. So imagine how exactly they are contributing towards this educational scenario of Kashmir. We have 13 lakh students enrolled in our schools. Government has 14 lakh 50,000 students enrolled in their. And imagine, we are being not treated in the way we should be. I tell you one thing, private education is the reality, we should accept it. It's just like an elephant, unnoticed, it's there in our room, we have to acknowledge this thing. This is the high time, no doubt, to review, to overhaul, and not to have a witch hunt for particular pattern. NEP is not talking about only about books. It's about talking about the holistic development. So we have to revisit, we have to review, and we want next 30 years a systematic program for our schools, for our education system. We want SOPs to be framed, we want regulations to be formulated, but they are stable, they are community friendly, they are student friendly. No doubt about this. Certainly, we don't want every chair should change the
the rules and regulations. We have witnessed it. If you see medical colleges, if you see these B.Ed colleges, decline of B.Ed colleges, if we see even the graduation, now we have to do graduation and we have to go to outside colleges for graduation. We have to go to Delhi, we have to go to Bangalore, we have to go to other places of our country. Imagine we have to make such an ecosystem in place which will certainly make strong rules, strong regulations, but absolutely that will be in consensus with it is another partner, that is the private sector. So we cannot ignore, we cannot make rules, we cannot make regulations, we cannot make which are not to be implemented then afterwards. So that's why that part is to be taken care. We need our involvement in such things that will be treated as knowledge partners. It should not be event oriented, it should be system oriented. It should not be firefighting issues. It should be a policy should be drawn up. And if we understand, we have been recently visiting DIDAC conference in Delhi. I will tell you what is happening in the next future classrooms. It is, I think it will take us 50 years to reach to those stages. And government, despite having, there are two pillars. One is government, another is the private sector. 14,50,000 students are studying in the government sector. 13 lakh students are studying in the private sector. Government has every facility. First, their selection is wonderful. The best teachers go to them. Imagine they have diets, they have SRTs, SERTs, then they have everything in place. And we, all men and machinery are with the government. Government is one pillar, one player with us, and we are the another player. And we are playing a match on a field where the umpires are coming from the government sector itself. We are being judged by the government itself about our rules and regulations. So NEP is not talking about this thing. NEP on the part 8, schedule 8, chapter 8 is asking that a statutory body should be coming into force, which should regulate the government as well as a private sector. So, sorry to cut you. I think we are deviating from the point. So I'll come to that. I'm just 5 minutes more. I'll come to. I need only 5 minutes more. Then I will be answering every question for that. ठीक है जरा मैं करता हूँ. अब ये सारी चीजें जो इन प्लेस है, हमारा अब ये जो लेवल फील्ड है, एनईपी जो है, एनईपी सिर्फ बुक्स की बात नहीं कर रहा है, एनईपी सिर्फ इतनी बार एनईपी इवैल्यूएशंस की बात कर रहा है, एनईपी बुक साथ साथ में एक स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहा है, जहां से हमारे को गवर्नमेंट को भी रेगुलेट किया जाएगा, हमको भी रेगुलेट किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस किसकी है और कहां प्रॉब्लम्स आ रही है. एंड दे विल बी, दैट इज द, इनको हैंड होल्डिंग करनी है, न कि टू पुश टू वॉल. दैट इज द स्ट्रेटजी वी नीड टू अंडरस्टैंड. आरटी, अब ये इशू जो आ रहा है कि राइट जो एजुकेशन का है, क्वालिटी एजुकेशन का, ये हमारा मकसद है कि हम जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन रादर आई विल से, कि ये हमारा एक मकसद है. उसके लिए आरटीई इज द एक्ट, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आर वे आउट. Why don't government come on to play if they have a budget of 1,14,000 crores on the education? Why can't they benefit? Why they are restricting the ambit to the government employees only? Why don't they put it to across the board that even everybody comes into, even रेडर वाला everybody comes into play? वो भी बेनिफिट लेता है इस चीज से कि हमारे को वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स उन पेरेंट्स को भी मिले जो आराम से. फिर इमेजिन, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा 98% स्कूल्स आर रेंजिंग फ्रॉम जो 3,000 में सारा कुछ आ जाएगा. इमेजिन उनकी बुक्स भी क्लियर हो जाए. 4-5 हजार में अगर उनको ट्रांसफर्स मिलते हैं, वोचर्स मिलते हैं या डायरेक्ट ट्रांसफर्स मिलते हैं, तो ये तो मसला ही हल हो जाएगा. सो द क्वालिटी एजुकेशन विल नॉट बी हैम्पर्ड. हम पीछे को नहीं, ये हम आगे बढ़ाएंगे. उससे क्या होगा? स्कूल्स विल इंप्रूव, the teachers will get better salaries and best salaries,
and not only them, it will improve to that extent कि सारा इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, पीछे नहीं धकेला जाएगा, आगे बढ़ाएंगे। और जो बेनिफिट इस वक्त सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, हम वोच करते हैं कि वो ये वी आर दिस टाइम ऑन एन ऑफिशियल नोट आस्किंग फॉर एकेडमिक ऑटोनॉमी। एकेडमिक ऑटोनॉमी में यही आता है कि हमारे स्कूल्स में कम से कम ये चीज होनी चाहिए कि अगर हम 2 बुक्स हमारे पास है, वन इज बेस्ड एनसीएफ की बात कर रहे हैं या हम एनईपीज की बात करते हैं, बुक्स तो सारी एनईपीज फॉलो करते हैं। अब ये है कि ओवर प्राइस्ड बुक्स एक आती हैं जो हमारी पब्लिकेशंस होती हैं, वो क्यों ओवर प्राइस्ड है आप जानते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग दैट, तो वो अलग चीज है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज, व्हाई डोंट वी स्विच टू द एनसीईआरटीज, जबकि हमारे पास एनसीईआरटी और बोर्ड की बुक्स में भी डिफरेंसेस हैं। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो लेस प्राइस्ड एंड बेटर क्वालिटी की बुक्स हैं। अभी मैं आपके पास, मेरे पास 2 सेट्स ऑफ बुक्स हैं यहां पे। इमेजिन करेंगे कि दिस इज द सेम एनसीईआरटी विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी। अब हमारे बोर्ड की भी पब्लिकेशंस हैं, सेम पब्लिकेशंस। द डिफरेंस लाइज हियर कि ये डिफरेंस आती है कि द क्वालिटी ऑफ द पेपर, द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स, द क्वालिटी ऑफ दिस। अब इसकी प्राइसिंग का भी डिफरेंस। एक बुक हमारी इंग्लिश में आती है, हमारी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में 60 रुपीज की आती है, जबकि ये बोर्ड में 195 रुपीज की आती है। हमारा साइंस 65 रुपीज का इसमें आता है, बोर्ड में 78 रुपीज का आता है। हमारा ऐसी डिफरेंसेस हैं। अगर हम गवर्नमेंट को, आज हमने ये पॉलिसीज भी दी, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं ठीक है हम एनसीईआरटी लगाएंगे, हम एनसीईआरटी डायरेक्ट लगाएंगे विदाउट कंटेक्सचुअलाइजेशन ऑफ दैट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हमारी प्राइसिंग बढ़ जाती है अननेसेसरी। अगर हम इस चीज को एनहांस कर देते हैं कि हम एक तरफ से सेट ऑफ बुक्स जो है एनसीईआरटी के लगाएंगे, प्लस हम उसमें रिकमेंडेड बुक्स जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की होंगी वो एडिशनल रिकमेंडेड बुक्स होंगी, दैट विल बी ऑप्शनल फॉर द पेरेंट्स, whether they want, some parents want to take it or not to take it. We want to settle this for once and for all कि ये बार बार एक बड़ा टैग लगता है माफी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि why schools have been, हमने देखा decline of our colleges, we have seen the decline of our medical colleges, जिनको यहीं पे आपने देखा जहलम वैली मेडिकल कॉलेज, आज तक हमारे को 30 साल में कोई मेडिकल कॉलेज फिर बना नहीं। ये ना प्राइम मेडिकल कॉलेज इज द स्टोरी विच इज नाउ डेड। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज जो मैम इस वक्त चला रही है, शी इज फेसिंग सो मच बॉटल नेक्स कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वी नीड कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड कि देयर नीड्स एन हैंड होल्डिंग, नॉट पुशिंग टू द वॉल। और उससे क्या होता है, हमारे 1200 करोड़ इस वक्त बाहर जा रहा है मेडिकल एजुकेशन के लिए। उससे क्या होता है, हमारा डिग्री अगर किसी को सिंपल ग्रेजुएशन क्वालिटी का करनी है, ही हैज टू गो आउटसाइड फॉर सिंपल ग्रेजुएशन। सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ इट। एंड द अनदर पार्ट इज दैट व्हाई दीज एडिशनल बुक्स आर टू बी रिकमेंडेड। अब हम क्यों एडिशनल बुक्स की रिकमेंडेशन चाहते हैं? सारी मशीनरी गवर्नमेंट के पास है, ट्रेनिंग्स इनके पास है, इंस्टीट्यूशंस इनके पास है, क्वालिटी टीचर्स इनके पास है। हमारे पास क्या है, हमारी यूएसपी है हमारा, वो है टेक्स्ट बुक, हमारी यूएसपी टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये हमारा मैनुअल है, हमारे बच्चों का मैनुअल है, हमारे टीचर्स का मैनुअल का है, हमारे स्कूल्स का मैनुअल है। इफ एट ऑल वी अंडरस्टैंड, अगर हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डायनेमिक्स है इस चीज का, ये स्कूल्स में हम क्यों लगाते हैं। अगर आप क्यूआर कोड बोर्ड की बुक को लगाते हैं, आप देखेंगे वो खुलेगा कहां। आप अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की लगाते हैं तो वो डिफरेंट, सर्टेनली दैट विल बी एन एडिशनल थिंग विच विल हेल्प द स्टूडेंट एंड, क्योंकि आईटी का जमाना है। हमारा आज मकसद है कि बच्चे सिर्फ, जब हम इनको विकसित भारत की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, जो बच्चा इस वक्त एलकेजी में इस वक्त बैठा है, जो इस वक्त एलकेजी में, वही मेरा कल सिटीजन बनेगा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, who will be contributing towards the developed nation. So we have to make them, financial literacy हमें उनको देनी है,
हमें AI को और मैथमेटिक्स का देना है। आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। परख ने भी रीडिंग्स निकाली, परख ने भी स्टडी निकाली। इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी टेकिंग केयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल्स, जो इन्होंने इवेल्युएशन देखी कि क्या एकेडमिक लेवल्स हैं। वी आर ऑल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स। हम नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हैं। गवर्नमेंट तो हमसे बहुत ज्यादा पीछे है, हम भी पीछे हैं। इससे बेहतर है कि आवर डिस्कशन शुड गो फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ दिस थिंग। हमें एक मुकम्मल पॉलिसी चाहिए, मुकम्मल कमेटी चाहिए जो प्राइवेट पब्लिकेशंस को, खास प्राइवेट पब्लिकेशंस को जो बोर्ड रिकमेंड करे, स्क्रूटनाइज करे, प्राइसिंग फिक्स करे। हमें उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हमें एक लिस्ट चाहिए कि दीज आर द पब्लिकेशंस विच वी अप्रूव। ये पब्लिकेशन 15 हैं, ये 50 हैं जिनको हमने बोर्ड ने अप्रूव किया है फॉर प्राइवेट, फॉर रिकमेंडेड सजेशंस, फॉर मोर स्टडीज। कुछ बचे हैं जिनको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ वेरी टेक्निकल बुक। ये कोई आसान बुक नहीं है। इट नीड्स लॉट मोर ट्रेनिंग्स टू टीच इट। इसको पढ़ाने के लिए भी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। हमारी जो बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशंस की है वो थोड़ा एलिबरेट करके देती है, वो थोड़ा माइंड मैप्स देती है, वो क्यूआर कोड्स देती है, वो बाकी चीजें उसमें, और एक्टिविटी बेस्ड है, और प्लस पिक्टोरियल पिक्चर्स जो है वो ज्यादा बच्चे की मेमोरी पे हावी होता है, एंड दे रिकॉल एंड दे रिमेंबर दिस थिंग। सो हमें इस डिस्कशन को, बोर्ड की कॉस्टिंग को हम आज डाई डाउन करना चाहते हैं। आज बुक्स सबके लगी हैं, छुट्टियां भी हो गई। अब हमें क्या करना है? शैल वी एंड नेक्स्ट ईयर ये फिर जून, अगस्त, सितंबर में, नवंबर में फिर ये प्रॉब्लम होगी? नो, वी डोंट वांट दैट। वी वांट गवर्नमेंट शुड मेक अ कमिटी, टेक द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, रिव्यू द थिंग। वी डोंट नीड बोर्ड बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जहां जहां पे जैसे कश्मीरी है, उर्दू है, उसमें अगर वो कंटेक्सचुअलाइजेशन करेंगे, नो डाउट, इवन हिस्ट्री में कुछ पोर्शंस हैं या ज्योग्राफी में कुछ पोर्शंस हैं, कंटेक्सचुअलाइजेशन करें। जैसे कि एनईपी बोलता है कि लोकल को भी पढ़ाना है, तो एनईपी के नॉर्म्स के हिसाब से भी हमें उसको जोड़ना है, मगर वो टीचर करेगा। मगर हमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर में टीचर आता है, ही इज फॉर अ टाइम देयर, बट वो जो वहां पे आता है उसकी ट्रेनिंग्स इतनी नहीं होती है। मैक्सिमम 98% स्कूल्स में जो होती हैं allied than the elite schools who are doing lot more impetus on the trainings on this thing, and they have the benchmarks. अब मैंने एक बेंचमार्क बना दिया है, उस बेंचमार्क को मैं नीचे लवर नहीं कर सकता हूं। मेरे स्कूल्स में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी हो, देयर इज अ बेंचमार्क established, and we are doing much better than these government schools, and government so उस चीज को आगे लेना है, उसको पीछे नहीं खींचना है। रैशनलाइजेशन के साथ हैं हम। उसके लिए हमने तजवीज की कि आप कमेटी बनाइए, जो पब्लिकेशंस आप फाइनल करेंगे, जिन पब्लिकेशंस को आप अप्रूव करेंगे हम वही लगाएंगे। जो प्राइसिंग आप वहां पे उनके साथ फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि पब्लिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी प्राइसिंग डिटरमिन करते हैं। आप पब्लिकेशन के साथ प्राइसिंग फिक्स कीजिए, आप उनकी क्वालिटी देखिए, आप उनके इनपुट्स देखिए, आप उनके आउटपुट्स देखिए, हमें बताइए कि ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये लिस्ट है बुक्स का, आप इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स एंड रिकमेंडेड रीडिंग्स कर सकते। बेसिक बुक्स हमारी एनसीईआरटी को रिकमेंड कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू, इंग्लिश, ये चीजें। बाकी वी आर शॉर्ट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रामर है इंग्लिश में, बोर्ड में के पास नहीं है, वी नीड सम प्लेयर टू कम इन। जैसे कुछ वर्क बुक्स है, वी नीड समबडी टू कम ओवर देट। वी नीड कश्मीरी फॉर एग्जांपल, एनसीईआरटी के पास नहीं है, वी नीड टू कम प्ले इनटू दैट। सो देयर आर पर्टिकुलर डोमेन्स। हम एक चीज चाहते हैं गवर्नमेंट को कि, और लोगों को भी, कम्युनिटी को भी, कि ये जो माफिया का टैग बार बार देते हैं कि इवन कल एक कोई कश्मीर विजडम करके है, नीचे मैंने देखा कि उसमें लिखा था माफिया, बुक माफिया के कुछ माफिया। तो आई विल जस्ट कुल, एक मिनट मैं और लूंगा, देन आई विल क्लोज दिस। मसला ये है कि जो ये इन्होंने कर दिया है, मुझे इनका एक ही चीज गवर्नमेंट का चाहिए कि जो यहाँ पे वो मॉडल इंस्टीट्यूशंस भी हमें दिखाएं। हमने मॉडल इंस्टीट्यूशन दिखा के रखे हैं इनको। आप देखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हो, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हो, यहाँ पे पटन साइड में हो, श्रीनगर में हो, आप देखिए अक्रॉस, राइट फ्रॉम टींटवाल टू प्लेन्स ऑफ जम्मू, वी हैव प्रूव्ड आवर वर्थ ऑन ग्राउंड जीरो। वी हैव शोन दैट वी आर डूइंग बेस्ट। सब सिर्फ एक ही चीज है कि इसको करनी है। दूसरी बात लास्ट में करना चाहता हूं, देयर आर सर्टेन स्कूल्स
जो ये 7,000 की ये बुक सेट है, जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। जो इसका ये 7,000 का सेट है, ये करिकुलम ड्रिवन है, ये कोई बुक की प्राइसिंग नहीं है। बुक की प्राइसिंग ओवरऑल अगर उसको 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है, अगर इसका बाइफर्केशन हम करेंगे 65% विल बी द बुक कॉस्ट, 30% will be the cost of the trainings and hand holding is the institution, the publisher is doing for the school, and 5% will be the support system they are providing to the school to enhance its benchmarks. अब मैंने 15 साल से बेंचमार्क अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़ा कर दिया है। वो कैम्ब्रिज पढ़ा रहा है, वो कोई बोर्ड पढ़ा रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं इमीडिएटली यू कम डाउन, अब आप इसके जीरो पे आ जाओ, यहां से स्टार्ट कर लो। सो वी शुड रिविजिट, हर किसी का डिफरेंट है। देयर आर नोटिफिकेशन जो आई हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है कि किस बिना पे हुए हैं। दैट इज द थिंग आई विश विजडम शुड प्रिवेल, अ कमिटी शुड कम इनटू फोर्स विच शुड टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स बाहर से मंगवाए जाएं, जो एक्सपर्ट्स यहाँ के भी हैं, हमारे बोर्ड को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बोर्ड में इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी प्रॉब्लम है। वी नीड, सबसे लास्ट पॉइंट में बनाना चाहता हूं, इवैल्यूएशन सिस्टम। सर एनईपी में बुक्स या स्टैट्यूटरी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है इवैल्यूएशन सिस्टम, दैट मीन्स अप्राइजल। आप पेपर क्या लेते हैं? पेपर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं कि जब आप पेपर लेते हैं वही डिटरमिन करता है कि टीचर को कैसे पढ़ाना है और स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। वो चीज एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने स्टार्ट कर दिया। सीबीएसई ने 50% कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे, कॉम्पिटेंसी बेसिस पे वो चीज स्टार्ट की है। आप 10th का पेपर आज ले लीजिए, 12th का पेपर ले लीजिए, आज ही ले लीजिए, एंड डिटरमिन द बोर्ड ने कहां तक उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया है। जम्मू हैज एंड सीबीएसई हैज गिवन इट competency based papers, and now the system is in place, they are following the competency based papers। हम चाहते हैं कि अप्राइजल सिस्टम भी हमारा competency based हो। थैंक यू साहब। कुछ दिन पहले ही जो कुछ स्कूल्स को जो है रजिस्ट्रेशन की कैंसिल की गई और कुछ स्कूल्स पे जो है जुर्माना भी आ गया बोर्ड की तरफ से, तो उस पर क्या करेंगे? सस्पेंड किया गया। देखिए सर, बोर्ड, यही मैं कहता हूं कि अगर हम 70 साल का हिस्ट्री देखेंगे अनंतनाग में या जहां पे आप लोगों ने ये सुना है, हमें बोर्ड, हमें गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन दिखा के दे जो उन्होंने 70 साल में बना दिया है। हमारे तो उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने उस पर कार्रवाई की या कुछ किया, वहां पे जाके देखे कि हम जाते हैं, दे आर द बेंचमार्क्स फॉर अस। वो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बेंचमार्क्स हैं। हम जाते हैं वहां सीखने के लिए कि कैसे हम अडॉप्ट करें नए सिस्टम्स को। उसमें इनपुट्स लगते हैं। वहां हर कोई क्लासरूम आप देखेंगे दे विल बी आईटी फिटेड, वहां पे वो क्लासरूम का सारा सिस्टम ही डिफरेंट होगा, उस पर इतना इनपुट्स लगता है। तो सर्टेनली जो चीज है वो चीज हमें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि अगर 70 सालों में किसी ने भी इंस्टीट्यूट, क्या हमें अब डलहौजी फिर से वापस जाना है? क्या हमें वही हिल टॉप के स्कूल में फिर से एडमिशन लेना है? क्या हमारे बच्चे अनंतनाग के हक नहीं रखते हैं क्वालिटी एजुकेशन? क्या हमारे पॉइनियर स्कूल के हक नहीं रखते हैं? क्या हमारे पुलवामा साइड के हक नहीं रखते हैं? सो वी नीड टू हैव अ लुक ऑन दिस कि ये विच हंट नहीं होना चाहिए, बेसिस कॉन्क्रीट बेसिस पे हो और इसको प्रमोट किया जाए, रैशनलाइजेशन को। हम उसके खिलाफ नहीं। सर आपने बात की अभी टेक्स्ट बुक्स की, इसमें दो चीजें हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो दे से कि बोर्ड की बुक्स की क्वालिटी, नॉट कंटेंट बट क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है। दैट्स व्हाई कि वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की बुक्स हो। लेकिन पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है कि अगर नजरुल बिलावल साहब के स्कूल में बुक्स पढ़नी है प्राइवेट पब्लिशर्स की, लेट देम बी अवेलेबल इन ओपन मार्केट। क्यों आप इसको बिजनेस बना रहे हैं? प्राइवेट पब्लिशर का अपने बुक शॉप के साथ कि आप पेरेंट्स को बोल एक पर्टिकुलर बुक शॉप पे जाए जो अपना कमीशन पहले स्कूल को देता है फिर बुक सेलर को देता है। उसमें बड़ा नेक्सस चल रहा है, 300 करोड़ का नेक्सस है ये, जिसमें ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग की जो एक पर्टिकुलर बुक शॉप के साथ, लेट यू कीप योर बुक्स अवेलेबल firstly on your website. that I will answer this question, then I will come to you. मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे ये रिजवान साहब की बात को इशू है। डाटा के बेस पे आप कहते 300 करोड़ नहीं कोई नहीं सर, नहीं let us put the records on correct, let us put the records on this। सर मैं एक चीज बनाना चाहता हूँ कि let us do one very important thing।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट सर। अब इसमें एक चीज है, जैसे हमारा रिजवान साहब ने कहा कि जनाब व्हाई इज नॉट इट अवेलेबल इन दिस इज व्हाट वी आर हियर नाउ। वी आर नॉट अगेंस्ट कि दैट इट शुड नॉट बी अवेलेबल, इट शुड बी रूम्स में अलग से कान में बोला जाए ये अवेलेबल है कि नहीं। हम तो इसको ओपन करना चाहते हैं। अब वी वांट नाउ, और इसके पहले भी हम चाहते हैं कि एक रैशनलाइजेशन सिस्टम हो। अगर बुक्स का लिस्ट आए, हम तो पहले एनसीईआरटी को पिच करते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल हो, बिकॉज कॉस्टिंग वो बोर्ड्स की बुक से भी कम है, क्वालिटी उससे बेहतर है, कागज की क्वालिटी है, तो ये पहले रिजॉल्व हो। फिर उसके बाद में हमारे स्कूल में अवेलेबिलिटी रहे, हम रिकमेंडेड बुक्स बोर्ड अलाउ करें कि हाँ जी ये इतने पब्लिकेशंस हैं, ये इतने हैं, ये नेक्सस खत्म हो जाएगा। लेट बोर्ड वो तो सर नजर गुलाम साहब को आप नहीं करना है, उसमें गवर्नमेंट का कोई नो वी हैव नथिंग टू डू। आप मेरे सवाल को समझेंगे। मैं कह रहा हूं सपोज यू आर टीचिंग 5 बुक्स, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले पुट द लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑन योर स्कूल वेबसाइट। So we are not. Let the parents know कि कौन सी बुक्स बच्चों को पढ़नी है। They can purchase it online. They can purchase them from open market. रिजवान सर, जब एक ऐसा नेक्सस होगा नहीं कि एक पर्टिकुलर सर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। आई एम पुटिंग नो वी डोंट एप्स नहीं मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली वी आर दैट इज व्हाट वी वांट। वी विल आई थिंक विल द फर्टिलिटी द कम्युनिटी विल नेवर। पहले तो मुझे ये है कि जो भी पेरेंट ये कंप्लेंट्स करता है उसका भी एक देखना चाहिए पहले रिकॉर्ड कि उसका 2 महीने 3 महीने का फी क्लियर है कि नहीं है। बिकॉज अगेन इट कम्स आउट टू बी दो जिसका 1 साल का फी क्लियर होता है वही ज्यादा परेशानी करता है। I'm coming to that. We are not only absolutely that we अब मैं वही मेरा वही है कि अब फिर से हमारा वही चीज रहेगा। हम तो इसको क्लोज डाउन करने चाहते हैं कि कोई भी उंगली ना उठाए। हम चाहते हैं कि बोर्ड ही पब्लिशर्स को जॉट डाउन करे कि ये वाली पब्लिशंस ओके हैं। मान लीजिए साइंस में उनने 15 टाइटल्स ओके कर दिए, 20 टाइटल्स ओके किए, 50 टाइटल, इन 50 में आप ले सकते हैं। प्राइसिंग तो आप वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है अभी जो मुझे देखने को लगा कि जैसे स्कूल वाले घर में प्राइसिंग लगा रहे हैं, तो ये ऐसे फीलिंग आ रही थी। लेट द बोर्ड नेगोशिएट विद देम द प्राइसिंग, द क्वालिटी, दिस थिंग। हमें बोर्ड ये बताए या कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी बने कि ये पब्लिकेशंस हैं, ये अप्रूव्ड हैं, वही हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे। लेट देम पब्लिश एंड परचेज इट फ्रॉम द ओपन मार्केट। वी हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज कि दैट इट शुड बी ये। अब ये क्यों स्कूल्स में आता है मैं आपको बताऊंगा। दूर दराज स्कूल होता है, मान लीजिए हमारे करना साइड में, तो इट हैज द पब्लिकेशन, जो पब्लिशर बुक सेलर जो होता है वो श्रीनगर में होता है। क्या हम सारे पेरेंट्स को यहां बोलेंगे जनाब आप आ जाइए? नो। हम ये कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पे भी अवेलेबल है, 2-3 के पास और भी अवेलेबल है, दे कैन गो एंड कलेक्ट द बुक्स फ्रॉम देयर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्यों एक कमेटी नहीं बनाती इस हवाले से? क्योंकि बहुत सारी शिकायत जिस तरह से आती हैं, तो एक कमेटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी बनानी चाहिए इस हवाले से अपनी तरफ से, ताकि ऐसी चीजें। और एक सवाल आप कह रहे हैं कि बोर्ड को कमेटी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को कमेटी गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर। मैं आपको गाइडलाइंस की क्लियर बताता हूं। दिस इज SRO 1 2 3 जो है सर, देयर इज टोटल रिकमेंडेशन ऑफ द बोस बुक्स। हम सिर्फ पिच कर रहे हैं कि बोस बुक्स जो हैं, हम जब एनसीईआरटी, यहां कंफ्यूजन चल रहा है कि एनसीईआरटी बुक्स सेम है, इट्स नॉट, देयर इज डिफरेंसेस। So that is why I have got this 2 books here, 2 sets of books. You can have a look. You can have a look on the quality of both these sets. वो भी आंसर, और ये उससे 40% लेस है। ये भी आपके सामने प्राइसिंग में। So forget about it. So we are coming down on the NCERT. But इस NCERT को ऑगमेंट, सप्लीमेंट करने के लिए जो टेक्स्ट बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशंस की हम अप्रूव कराना चाहते हैं, अलाउ कराना चाहते हैं, वो क्योंकि वो SRO 123 भी कह रहा है कि in the public interest, in the interest of the student community, in the parental choice, in the making the benchmarks, government and the boss can make a committee, can recommend some books. It is there in the SRO 123. So there is no, we are not talking something. Currently, private schools are illegally prescribing textbooks of private publishers. क्योंकि उनको It is not. देखिए, again, we are putting again. There are already under SRO. Again, I will tell you where it is not. It is not only J&K which is facing this thing. अब मैं बताऊंगा, मेरा बच्चा एक पढ़ता है JK बोस में, दूसरा CBSE में पढ़ता है।
क्या मेरे को सीबीएसई बच्चे को अलाउ है सब कुछ पढ़ने के लिए? मेरे बच्चे को आप हैंडकप करना चाहते हैं, क्यों? वाई? गवर्नमेंट सेम है, एनओसी वही है, सारा कुछ वही है, बोर्ड डिफरेंट है। एक को अलाउड है सब कुछ पढ़ने के लिए, दूसरे को अलाउड है ये। वी अंडरस्टैंड 9th के बाद 9th, 10th, 11th, 12th, the NCERTs are so well designed. We agree. We have this understanding of these facts. But one very important, suggested readings, extra material is everywhere part of the game. So we cannot deny that. So we are asking, okay, जो ही हम suggested readings करते हैं ना, आप बोलते हैं देखो इनको ये कमीशन होगा, इनको अब ये होगा. We want this to end. We are asking the government to give it. That's it. Thank you, sir.